books of original entry. So once again, I am showing it. You can note it down. The chapter's name, books of original entry. So this is the new chapter, and this is very for all. Okay, we can say that this is the basic or fundamental of the counting. Okay, when we run our business, so there may be so many transactions every day, and all transaction is to be recorded at first. Here this is called original book of entry or books of original entry. This means we record very first time here. Okay, that's why you should maintain this book. So whatever transaction, how much daily basis pay, whatever we are selling goods, we are buying goods or purchasing goods, what kind of assets we have purchased, what kind of assets we have sold due to defective or old, and how much expenses we have made or incurred, and how much income we have received. Okay, everything we should record whenever it occurs, and this all is to be recorded in the books of original entry. So fellow students, one thing I love to tell you all, there are two types of business. Actually businesses types are just I mean to say here on the basis of size. So there may be small business and business. Okay, सो जो स्मॉल बिजनेस होगा उसके ट्रांजैक्शन भी लिमिटेड होंगे. विच बिजनेस इज वास्ट ब्रॉड, तो उसके जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो भी बहुत ज्यादा होंगे. ठीक है, सो जब लिमिटेड ट्रांजैक्शंस हो गए तो इट इज पॉसिबल टू रिकॉर्ड इन अ वेरी इजियर वे. बट इफ ट्रांजैक्शन इज सो लार्ज, so it becomes so difficult or complex to maintain a record. So for this I will teach you today. There are accounting cycle. So accounting cycle, okay, this is what accounting cycle. And in accounting cycle, very first time we record journal. This is called journal entry. Okay, this is what very first step. And subsidiary book. So now students see, but we have written both sides the first number. This means very first type transaction we should record in the journal entry or in subsidiary book. Journal entry or subsidiary book. Okay, both are called original book of entry. Right? Now the question is how we will record in when we will record in journal entry and when in subsidiary book. So okay students, so as I have said right now, there are two kinds of transaction. One is limited, a business is limited and small. A business is big, means बहुत ही टर्नओवर बहुत ज्यादा है, तो उसके ट्रांजेक्शन्स भी क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स ज्यादा होगा. सो देखो जब स्मॉल बिजनेस होता है तो हम लोग जो जर्नल एंट्री करते हैं ये फॉर स्मॉल बिजनेस वेयर ट्रांजेक्शन इज वेरी लिमिटेड. वी डू the journal entry for the small business where transaction is very limited, right? But we do subsidiary book. We prepare subsidiary book when our business is, when a subsidiary book for large business. Okay, for large business. Why? The transaction also would be large, so we should record on the subsidiary book. Okay, so now one thing, now note it down. If you are unable to note it down immediately, you can take
In short, it will be easier for you. Okay, so अकाउंटिंग साइकिल में फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा? So journal entry or subsidiary book, right? So journal entry, we pass the all the transaction in the books of journal entry. Okay, very first time when our business is small or transaction is very limited. But our business is large and transaction is unlimited, means vast also. It will be difficult to pass all the transaction in the journal entry because there will be a very large number of entry. So in that case we maintain subsidiary book. Okay, so अब क्वेश्चन ये होता है subsidiary book में किस टाइप के ट्रांजेक्शंस होते हैं? देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक? सो जस्ट आई एम गोइंग टू राइट द नेम ऑफ द सब्सिडियरी बुक. सो जर्नल एंट्री और सब्सिडियरी बुक. सो जर्नल एंट्री करोगे तो सब्सिडियरी बुक नहीं करने की रिक्वायरमेंट है. अब सब्सिडियरी बुक करेंगे तो जर्नल एंट्री सारे ट्रांजेक्शन का नहीं करते हैं. जर्नल एंट्री होता क्या, एक बात और समझ लो. जर्नल एंट्री refers to recording of all the business transaction in a book on the chronological basis. Chronological basis means date wise, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है वैसे वैसे रिकॉर्ड कर ले जाए. ठीक है, दिस इज व्हाट जर्नल एंट्री. अब सब्सिडियरी बुक की बात हम करते हैं. लेट अस टॉक अबाउट द सब्सिडियरी बुक. तो इन सब्सिडियरी बुक हम लोग सबसे पहले कैश बुक बनाते हैं. वी प्रिपेयर कैश बुक. सो कैश बुक क्या होता है? In cash book, we record all the transaction of cash. Okay, students. In subsidiary book, पहला हमने जो बनाया वो क्या बनाया? Cash book. So in cash book, we record all the transaction relating to cash. Okay. तो कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हो गए, जितना कैश रिसीव हो रहा है, जितना कैश पेमेंट हो रहा है, इवन चेक से रिलेटेड भी ट्रांजेक्शन हम लोग इसी में प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, सो वी मेंटेन कैश एज वेल एज बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन. ओके, सो ध्यान रखो कैश बुक पे सारा कैश ट्रांजेक्शन हो गया, यानी चाहे वो कैश से रिलेटेड हो एंड बैंक, राइट? कैश एंड बैंक. Sorry. Second, purchase book. Yes, purchase book. So purchase book में हम क्या करते हैं कि in purchase book we record all the credit purchase of goods only. ध्यान रखो, I'm repeating my line. In purchase book we record all credit purchase of goods only, not assets. जितना हम गुड्स उधार खरीदेंगे उसका रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो कैश परचेस करेंगे गुड्स का वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया होगा, राइट? तो गुड्स क्या होता है? देखो, गुड्स refers to all those things in which a trader deals. For example, या in other words कह सकते हैं कि गुड्स refers to all those things which we buy for resale with a view to earn profit. यानी प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कोई चीज हम खरीदते हैं और बेचते हैं, तो वो चीज जिस चीज को हम खरीद और बिक्री कर रहे हैं, यानी परचेज एंड सेल कर रहे हैं, तो वो गुड्स कहलाएगा. लाइक मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स गुड्स हो गए बिकॉज ही इज डीलिंग. गोलगप्पे वाले के लिए गोलगप्पा गुड्स हो गया बिकॉज ही इज डीलिंग इन गोलगप्पा. ठीक है, मोबाइल शॉप वाले के लिए मोबाइल गुड्स हो गया. तो गुड्स में बी एनीथिंग इन विच योर ट्रेडर इज डीलिंग. ओके, सो परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. लाइक देन सेल्स बुक. सो इन सेल्स बुक वी रिकॉर्ड ऑल द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली. गुड्स सेल करेंगे लेकिन कौन सा? क्रेडिट, जितना उधार बेचे होंगे उसका रिकॉर्ड करेंगे. तो ध्यान रखो, क्रेडिट परचेस बुक में क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स ओनली एंड सेल्स बुक क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली, क्योंकि कैश परचेस एंड कैश सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में, राइट? जो कोई हम लोग बाइफॉर्केट कर रहे हैं, तो जब बड़ा ट्रांजेक्शन होगा, बिजनेस लॉन्ग है आपका, लार्ज है, तो ट्रांजेक्शन को जब हम लोग स्कैटर्ड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे अलग अलग कैटेगरी में, तो ऑटोमेटिक वो स्मॉल पार्ट में हो जाता है. ठीक,
अब इसके बाद रिटर्न बुक मीन्स परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न बुक इसमें क्या होता है, तो जितना भी हमने क्रेडिट पे परचेस किया था, ठीक है, उसमें से अगर कोई गुड्स डिफेक्टिव होने की वजह से या किसी भी अदर रीजन से हम वापस कर रहे हैं या एज पर सैंपल नहीं है तो हम वापस कर रहे हैं सप्लायर को। तो जब हम क्रेडिट पे परचेस किया हुआ गुड्स रिटर्न करते हैं सप्लायर को तो उसका रिकॉर्ड परचेस रिटर्न बुक में करेंगे, राइट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि व्हेन वी return the credit purchase goods, we record it in the purchase return book. I hope students you have understood this line. Okay, now next point is sales return. Okay, so sales return book क्या होता है, just reverse sales return, सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न बुक स्टूडेंट्स जितना हमने क्रेडिट पे सेल किया है गुड्स को और उस क्रेडिट पे सेल किया हुआ गुड्स को जब हमारे पास वापस आता है, जैसे मैंने कस्टमर को क्रेडिट पे सेल किया, अब वो कस्टमर किसी वजह से गुड्स उसको पसंद नहीं आया या गुड्स डिफेक्टिव था, गुड्स इज नॉट एज पर द सैंपल, या गुड्स उसके यहाँ नहीं सेल हो पा रहा है, हमने कुछ कह रखा था कि नहीं सेल होगा तो रिटर्न करना, व्हाटएवर तो रीजन में भी। सो अगर वो कस्टमर जब हमें गुड्स वापस कर रहा है, कौन सा गुड्स, जितना हमने क्रेडिट पे सेल किया था, तो क्रेडिट पे सेल किया हुआ गुड्स जब हमारे पास वापस आता है तो इसको सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। सो परचेज रिटर्न परचेज का रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न में सेल्स का रिटर्न होगा, राइट। अब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का एक अल्टरनेटिव नाम है, आप लोग अपने नोटबुक पे लिख लो बेटा, ठीक है, आप लोग अपने नोटबुक पे लिख लो, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, here is not a space. Purchase return book is also known as return outward, return outward book या return purchase return को कहते हैं हम return outward, right? So purchase return is called return outward. Sales return क्या कहलाता है, return inward, क्योंकि goods हमारे पास आता है sales return में, इसलिए return inward कहलाता है। And purchase return we return the goods, तो goods बाहर जा रहा है तो it is called return outward, right? I hope you have written all these things. So students, one thing you have to be careful here, you have to notice कि in cash book we have recorded cash purchase and cash goods, चाहे कुछ भी हो, या cash payment और cash receipt, चेक से रिलेटेड हो चाहे कैश। In purchase book we record only credit purchase of goods, in sales book we record only credit sales of goods, and in purchase return we record credit purchase return of the goods, and in sales return book we record credit sales return of the goods. बट ध्यान दो, एक चीज आपका रह गया, फिक्स्ड एसेट्स जिसके बिना बिजनेस नहीं चलती, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक प्लांट मशीनरी बिल्डिंग फर्नीचर व्हाटएवर, एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक फर्नीचर हो गया, टाइपराइटर हो गया या कंप्यूटर हो गया, बिलिंग मशीन हो गया, अब कस्टमर आएगा बिल उसे दोगे, तो इन सभी चीजों के लिए एसी लगवाया फैन लगवाया, इन सारी चीजों को क्या कहते हैं हम, एसेट्स, और ये क्या कहलाता है, फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम इसको कैश परचेस करेंगे तब तो कैश बुक में दिखाई देगा, या कैश सेल करेंगे तब भी कैश बुक में दिखेगा। लेकिन सपोज दैट अगर तुमने एयर कंडीशन अपनी दुकान के लिए उधार खरीदा, फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदा, उधार खरीदा, कोई भी मशीन उधार खरीदा, ठीक है, तो इसका रिकॉर्ड कहां करेंगे, क्योंकि कैश परचेस सेल का तो रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि परचेस बुक में सिर्फ गुड्स का रिकॉर्ड करते हैं न कि एसेट्स का। तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका रिकॉर्ड किसी बुक में नहीं हो रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। लेकिन इस जर्नल एंट्री का नाम क्या होता है, जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर। इट मीन्स we do not pass the record of all the transaction in the journal entry. We do pass the journal entry only for those transaction or those proper transaction which do not place in any book. So this is called journal proper.
जर्नल प्रॉपर आप नोट कर लो, जर्नल प्रॉपर इज जस्ट लाइक अ जर्नल एंट्री। फर्क क्या है, जर्नल एंट्री में ऑल ट्रांजैक्शन पे रिकॉर्ड इन जर्नल एंट्री, बट इन जर्नल प्रॉपर में हम सिर्फ वही रिकॉर्ड करते हैं जो इस पूरे ऊपर के 1 2 3 4 5 बुक में कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ है, बच गया तो उसका। जैसे कुछ एग्जांपल्स में बता देता हूँ। अभी मैंने एक एग्जांपल बताया, क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट क्या होता है आप लोग को पता होगा, मैंने पढ़ा रखा है, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग व्हाटएवर फर्नीचर। अब आप बताओ कि जब हम कोई एसेट्स यूज करते हैं तो क्या वो एसेट्स लाइफ टाइम तक एज इट इज रहता है? नो। जैसे हमने फर्नीचर यूज किया तो फर्नीचर जैसे जैसे यूज करेंगे ईयर पास होता जाएगा, उसमें टूट फूट होगी, घिसावट होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। तो उस वैल्यू को जितना रुपया कम होता है टूट फूट की वजह से, वियर एंड टीयर की वजह से, उसको कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। ओके, सो डेप्रिसिएशन से हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। सो डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड करना चाहिए हमें। सो डेप्रिसिएशन ना तो कैश में है न तो क्रेडिट में है, ये एक बुक चार्जेस है, ये हम अपने से एस्टिमेट करते हैं, तो इसका रिकॉर्ड तो किसी बुक में नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे, लाइक डेप्रिसिएशन हो गया एंड क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स एंड क्रेडिट पर सेल्स ऑफ एसेट। इस तरीके से और भी कुछ ट्रांजैक्शन आ सकते हैं जो कि कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप इसे नोट कर लो। ये फर्स्ट स्टेप है, यानी जर्नल एंट्री या सब्सिडरी बुक, ये पहले नंबर पे होता है। इसके बाद जो पढ़ना होता है वो लेजर कहलाता है। हम ये सारा अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा चुके हैं। जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू रेज दिस, आई एम गोइंग टू राइट दिस सेकंड। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट और ओके। सो शुड आई, you can react by your emojis only, okay? emoji से आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके गुड। सो नाउ सेकंड लाइन, फर्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड पे आता है लेजर। लेजर को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग अकाउंट के नाम से भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, लेजर कह लो चाहे क्लासिफिकेशन कहो या अकाउंटेबिलिटी से अकाउंट पढ़ा था ना, उसी वही है लेजर। ठीक है, हम लोग लेजर चैप्टर में पढ़ेंगे, सब स्टेप लिख रहे हैं, ये हम लोग एक बार लिख चुके हैं जब मैं पढ़ा रहा था अकाउंटिंग साइकिल। इसके बाद हम लोग समराइज करते हैं, समराइज इनटू, समराइज जो करते हैं ये होता है इसमें ट्रायल बैलेंस। ठीक है, हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग क्या क्या बनाते हैं वो ध्यान रखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, फिर तीसरे नंबर पे बैलेंस शीट। ये तीन चीज बनाते हैं, आपको ये पता होगा बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने पढ़ाया था। एसेट्स एक साइड होता है, लायबिलिटी और कैपिटल एक साइड। ट्रेडिंग अकाउंट ये एक लेजर ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लेजर है, बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है। सो ये आप नोट कर लो, सारा स्टेप हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल या बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सो अब आज हम लोग पढ़ेंगे जर्नल एंट्री के बारे में। सो यहाँ तक आप नोट कर लो, एंड नोट कर लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, सो जस्ट रिएक्ट बाय योर इमोजीज। इमोजी से आप लोग रिएक्ट कर सकते हो, जस्ट लाइक ग्रीन, जस्ट आई हैव डन, और थम्स अप। ओके, Palak has done, Harsh Gupta has done, and rest of the student I hope will be doing. Okay, students. Now I am going to start journal entry. Okay, but directly we cannot start the solving.
Before starting the journal entry, we must know the golden rule. And to know the golden rule, first of all, we have to understand the nature and types of account on which we apply the golden rule. Okay, or debit credit rule as per the double entry system. This is very, very important, students. So now I'm going to raise this. तो स्टूडेंट्स हेडिंग डाल लो। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, देखो गोल्डन रूल को पढ़ने से पहले गोल्डन रूल होता है क्या है, डेबिट और क्रेडिट रूल, कि किस पर्टिकुलर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और किस पर्टिकुलर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ओके, जस्ट आई एम रिपीटिंग इट अगेन। इन गोल्डन रूल वी स्टडी which account is to be debited and which account is to be credited, as we all are knowing that each and every business transaction having twofold effect, right? One is to be debited and other one is to be credited by their respective rules. Okay, but how we can identify which account is to be debited and which account is to be credited and what is the nature of that particular account? So to understand all these things, today we will study about the types of account. Okay students, so right heading, types of account. टाइप्स ऑफ अकाउंट, राइट? सो टाइप्स ऑफ अकाउंट में जैसे कि दो तरीके का मेनली बताया है, बट होता क्या है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, these are the two accounts, but impersonal account has been further classified into two: a real account and nominal account. तो अगर हमसे कोई पूछा कि अकाउंट कितने होते हैं तो हम तीन बता सकते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। देखो पर्सनल और इम्पर्सनल क्यों रखा गया है? पर्सनल का मतलब जो किसी पर्सन से रिलेटेड है वो पर्सनल, बाकी सारा अकाउंट इम्पर्सनल हो गया ना। जैसे हम पूरे स्टूडेंट्स जो अभी आज हमारे पास 12 लोग हैं, मान लो इसमें से कोई बंगाली बोलने वाला है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉन बंगाली कितने हो गए? अगर एक बंगाली बोलने वाला है तो नॉन बंगाली बोलने वाला कितने हो गए? 11। ठीक उसी तरह अगर पूरे इस तीन अकाउंट्स में अगर ये पर्सनल है तो बाकी सब क्या हो गया? इम्पर्सनल, राइट? सो पर्सनल और इम्पर्सनल बस इतना ही है। और हमें पढ़ना क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, राइट? तो हम लोग इस पे फोकस करेंगे। देयर आर थ्री अकाउंट्स, 1 2 एंड 3, और मेजर पार्ट में अगर देखा जाए तो 1 एंड 2, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में सेकंड और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पर्सनल। सो पर्सनल अकाउंट को भी आप लिख लो, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 3 सब पार्ट। पहला, फर्स्ट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सब पर्सनल होगा, आगे पर्सनल वी कैन ऐड ना। एंड नाउ रिप्रेजेंटेटिव। Representative personal account, right students? So these are the three parts of the personal accounts. You must see all are personal, 1 2 3 means सबके साथ कॉमन रूल लगेगा। पर्सनल का क्या होगा वो बताएंगे, अभी ये क्या होता है वो भी समझाते हैं। तो अब आते हैं हम लोग पर्सनल के बारे में, रियल नॉमिनल बाद में डिस्कस करते हैं, राइट? सो स्टूडेंट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है आप उसे लिख लो, अगर नहीं लिखे हो तो एक बार फिर से। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट। जैसा कि नाम बता रहा है पर्सनल, पर्सनल मीन्स इट रिफर्स टू नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। किसी भी इंसान का नाम अकाउंटिंग भाषा में उसे
पर्सनल अकाउंट कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में, ठीक है। जैसे अर्श अकाउंट, आदित्य रस्तोगी अकाउंट, अर्थ अथर्व सिंह अकाउंट, तो दीज ऑल आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। बट पर्सनल अकाउंट यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सो पहले आप लोग नेचुरल के बारे में बात कर लें। सो नेचुरल पर्सन अकाउंट रिफर्स टू द नेम ऑफ पर्सन, यानी हम सब लोग क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है विच हैज बीन मेड बाय गॉड, जिसे नेचर ने बनाया। दिस इज व्हाट नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ओके, सेकेंड आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है, दिस इज आल्सो a person but they don't have any physical appearance like us, but they have a separate name, they have a different features. Okay, so all these things are there but they don't have the physical appearance and they don't has been created by the god, they have been created by law. Okay, so artificial person क्या हो सकता है, name of organization, association, school, hospital, institutions, firm, business enterprises. These all are also personal account because they can deal with their own name. उनका अपना खुद का नाम होता है, बिजनेस का, स्कूल का, बैंक का, फर्म का, सबका अपना नाम होता है। लाइक IHS इंटरनेशनल इंडियन स्कूल, ठीक है, स्कूल का अपना नाम है। बट देखो दिस इज व्हाट, स्कूल दिखाई नहीं देता है। This time in the lockdown period, you can take example, our school is running, but buildings are closed. So that is not a school. School building is not a school. That is an infrastructure. That is an assets. यानी जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं वो एक ऐसा एसोसिएशन या बॉडी होता है, ग्रुप ऑफ पीपल का, जो कि पेपर पे रजिस्टर्ड होता है। लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसकी कहीं BHU कितनी बड़ी बिल्डिंग नहीं दिखाई देगी, बस वो पेपर पे रजिस्टर्ड है। दे डोंट हैव एनी फिजिकल अपीयरेंस, दे हैव बीन क्रिएटेड बाय लॉ। जैसे बिजनेस फर्म, बिजनेस आप घर में बैठकर भी, सड़क पे बैठकर भी फर्म के नाम से चला सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस चलाते हो तो ऑनलाइन में कोई बिल्डिंग तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन है, लिस्ट में उसका नाम है, वो अपने नाम से कर सकता है। तो सिंपल सा चीज, नेचुरल पर्सन में नेम आपको पर्सन होता है, ह्यूमन बीइंग। आर्टिफिशियल में नेम ऑफ द स्कूल, बिजनेस एंटरप्राइज, हॉस्पिटल, एनीथिंग जो कि आर्टिफिशियल है, जिसको लॉ ने बनाया है, जिसका बर्थ और डेथ दोनों लॉ के थ्रू होना है। और हम लोगों का जो नेचुरल पर्सन है, इनका बर्थ और डेथ गॉड के थ्रू होना है। तो दिस इज व्हाट नेचुरल। अब आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट स्टूडेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ही होता है किसी को रिप्रेजेंट करना। ओके, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का मतलब होता है किसी को रिप्रेजेंट करना, दिखाना। ओके, जैसे कि नेचुरल कोई ऐसा टर्म या कोई ऐसा आइटम जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब क्रेडिट पे किसी कस्टमर को गुड्स उधार सेल करते हैं, व्हेन वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू अ कस्टमर, तो हम कस्टमर को किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? एक अकाउंटिंग लैंग्वेज में वर्ड दिया गया है, डेटर्स। डेटर्स वर्ड दिया गया है, अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा होगा। सो हम लोग डेटर वर्ड यूज कर रहे हैं। तो डेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको कि मैंने गुड्स उधार बेचा है ना। तो उसका नाम नहीं दिखाई दे रहा है, बट डेटर, जो डेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, इनडायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है कि वो व्यक्ति एक पर्सन है, चाहे वह नेचुरल हो या आर्टिफिशियल। किसी ह्यूमन बीइंग को हमने कस्टमर को उधार बेचा है, रेगुलर मतलब जो कंज्यूमर है, या किसी बिजनेस को मैंने उधार बेचा है, किसी बिजनेस फर्म को उधार बेचा है, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। So this means the representative person refers to those account which represent indirectly to a person, whether it is natural or artificial. ठीक है, अब हम एग्जांपल्स में लिख लेते हैं। नेचुरल में जैसे कि राम, श्याम, ठीक है, तो 2 नाम हमने लिख लिया नेचुरल। आर्टिफिशियल में स्कूल का नाम, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा लिख लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, IHS। एक बिजनेस का नाम जैसे टाटा, ठीक है। सो दिस आर व्हाट आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव में क्या हो जाएंगे? जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है। और कोई भी ऐसा एक्सपेंसेज, कोई भी ऐसा एक्सपेंसेज जिससे ठीक पहले
प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, accrued, unaccrued, अगर कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स लगा है किसी भी ऐसा एक्सपेंसेस या इनकम जिसके ठीक पहले या बाद में मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स लगा है, लाइक प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअक्रूड, रिसीवेबल, ठीक है, ये सारे वर्ड लगा है, तो वो भी तुम्हारा क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी लेबर से घर पे काम कराया, उसकी जो डेली का वेजेस हुआ, मजदूरी मान लो 500 हुआ, ओके। अब आपने क्या किया कि उस लेबर को कल भी काम पे बुलाना है। अब सोच लो कि हम पूरा पैसा दे देंगे तो वो आएगा नहीं, तो आपने क्या किया, उसको 300 दिया और 200 रुपीज बोला कि बाद में देंगे, यानी सर्विस तो पूरा ले लिया, लेकिन पैसा आप क्या कर रहे हो, बाद में दोगे लेटर। तो उस 200 रुपए को आप अपने यहाँ रिकॉर्ड करोगे, किस नाम से, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 200 रुपीज। तो अब जब आउटस्टैंडिंग वेजेस नाम पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा ये उसी लेबर को देना है जिसको आज हमने कम दिया। तो ये आउटस्टैंडिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस लेबर को। लेबर क्या है, एक पर्सन है, राइट। सो आई थिंक यू हैव गॉट इट कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा। तो उस लेबर का नाम ना लिखकर हम उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड लिखें जो कि उसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक। इसी तरह आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसको मैंने किसी एडवांस, जैसे कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ काम कर रहा है, उसको पैसे की जरूरत है, आपने एडवांस 2 महीने की सैलरी दे दी, तो प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी किसको बता रहा है, उस एम्प्लॉय को जो कि एक पर्सन है। सो प्रीपेड सैलरी भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल हुआ क्योंकि वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। So students, I hope you have understood personal account, natural, artificial, and representative. So personal account refers to those account which uh, is related to name of person, name of business, organization or institution, and all those account which represent indirectly to a particular person, whether it is natural or artificial, right? So this is what personal account. अब इसके बाद हम लोग का बचता है रियल और नॉमिनल। तो एक बार आप लोग बुक से पढ़ लोगे क्योंकि आज टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें है एक टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो रियल अकाउंट में दो हैं, आप नोट कर लो अभी, just we have 2 minutes so you can note at least. Real account includes 2 types of assets. Real means जो रियल में है, वास्तव में है, वास्तविक खाता, real account. So tangible that we can see or touch, and intangible means that we cannot see or touch. Okay. We will discuss later on in the next class. And nominal account includes expenses and losses or income एंड गेन। हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के बारे में इन नेक्स्ट क्लास। जस्ट फॉर टुडे एज फॉर नाउ जस्ट यू हैव टू नोट डाउन रियल अकाउंट इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड्स 2 टाइप्स ऑफ आइटम्स like name of expenses and losses and name of income and gains, right students? Yes, Adit Rastogi want to ask something, so unmute your mic. Yes.